اور لاکھوں لوگ ہر سال دنیا میں جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. بعض جگہ جہاں لگتا ہے کہ نہیں ہے وہاں بھی خاموشی سے کام ہو رہا ہے. اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوت کی تاثیر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ سچائی پر دلیل ہو، وہ تاثیر بھی ظاہر ہو رہی ہے. اور اگر مجھے اس قدر یقین ہے لوگوں کو، مولویوں کو، کہ ہم جھوٹے ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا مولوی ہمیں کھلی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم تبلیغ یا مناظرہ کریں اور پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. بھائی یہی بات ہم کر رہے ہیں خلیفہ صاحب، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ مناظرہ کریں، لوگوں کو پتہ چل جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. لیکن آپ کے مربیوں کی کارکردگی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کے مربی خود مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیں مولوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مناظرہ کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہے سارے مربیوں کو. کوئی مربی سامنے نہیں آ رہا، لیکن ایک مربی ہے آپ کا مشہور مربی، اس کے پاس میرا چھوٹا بھائی گیا ہے میرے سلسلے میں بات کرنے کے لیے کہ مولوی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. مربی انصر رضا صاحب، مولوی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ خلیفہ صاحب اپنے مربی کے یہ الفاظ سن لیں کہ وہ مربی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ولید بھائی، انصر صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، یہ ہمارے مشنری ہیں الحمدللہ فرام کینیڈا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو انصر صاحب اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور آپ پلیز اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی انصر صاحب اجازت ہے مجھے پوچھنا؟ اچھا، میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات، ایک دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، تو انشاءاللہ میرے خیال میں ایک بات میں آپ، میرے خیال میں دونوں باتیں انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گی. میری گزارش اس طرح ہے کہ جس طرح آپ شگری صاحب کے پروگرام میں گئے تھے، اسی طرح ہی وہ لاہوری جماعت کے بھی ایک بھائی گئے تھے، اور پھر غیر احمدیوں کی طرف سے عامر نذیر صاحب بھی گئے تھے وہاں پر. تو اس کے بعد شگری صاحب نے یہ ان کے سامنے کہا تھا، عامر نذیر صاحب کے سامنے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ انصر رضا صاحب اور آپ دونوں کو اکٹھے ہی بلاؤں. تو اس پر عامر نذیر صاحب نے تو یہی کہا تھا انہیں کہ بالکل میں اس کے لیے خوشی محسوس کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا بھی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، میں انصر رضا صاحب سے پوچھ کے ان سے بات کر کے اگر وہ رضامند ہوں گے تو میں پھر آپ کو بٹھاؤں گا. تو اس کے بعد ابھی تک شگری صاحب نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کر لیا ہے، یا آپ نے انکار کر دیا ہے، یا ابھی تک آپ اس کے بارے میں سوچ رہے؟ یہ سوال ہے. بات یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن کریم کے پیروکار ہیں اور قرآن کریم نے جاہلوں سے بات کرنے سے منع کیا ہے. ہیلو، احمد نذیر کو میں آج سے نہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے جاہل ہیں، تو یہ ان میں سے ایک ہیں. اچھا، اس لیے شگری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے ایک دو دفعہ پوچھا بھی ہے، تو میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ ان کو انکار کر دیا تھا. میں کہا جی آپ نے ان سے انٹرویو کیا ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے میں نے جواب دے دیا ہے، بلکہ آج ہی ہم نے ایک پروگرام اپلوڈ کیا ہے جس میں ان کی باتوں کا جواب ہے. اچھا، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا، وہ میں قرآن کریم کے حکم کی روح سے مجبور ہوں کہ میں جو اللہ سے خطاب نہیں کر سکتا، مخاطب نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے ان کا پروگرام دیکھا ہوگا، انہوں نے ایک بھی قرآن کی آیت پیش نہیں کی. لو جی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حکم کی روح سے میں ان سے بات کرنے سے عاجز ہوں، مجھے قرآن کریم نے منع کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ 30 اکتوبر 2024 کے بعد نازل ہوئی ہے. 30 اکتوبر 2024 کے دن آپ کے اسی مربی کے ساتھ اسی کے چینل پر جا کر میں بات کر کے آیا ہوں، وہاں یہ پھنس گئے تھے بات کر کے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ قالوا سلامہ، اب نہیں آپ سے بات کرنی. یہ ہے ان کی پرابلم. بہرحال خلیفہ صاحب، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اس مربی انصر رضا کو فون کریں، میسج کریں اور کہیں کہ بھائی اس کے ساتھ بات کرو. کیوں نہیں بات کرتے؟ جب میں کہہ رہا ہوں مولویوں کے ساتھ مناظرے کرو، مولوی کیوں نہیں مناظرے کرتے؟ مولوی تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں کہتے ہو یہ جاہل ہیں، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی؟ یہ جاہل شہل کا بہانہ نہ لگاؤ، ان سے مناظرہ کرو، آگے بڑھو. اب خلیفہ صاحب آپ کا میسج آنا چاہیے اپنے اس انصر رضا مربی کے لیے کہ عامر نذیر سے
शिगरी साहब के चैनल पर जाकर आमने सामने बैठ के बात करो, लोगों को पता चल जाएगा, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे। जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि लोग खुद ही फैसला कर लेंगे, जब मुनाजरा देखेंगे तो लोग फैसला कर लेंगे कि किसके पास दलाइल हैं। तो ठीक है खलीफा साहब, आपका हुक्म हमने अंसर रजा साहब को भी पहुंचा दिया है, ये रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं, ये भी अपलोड हो जाएगी। और उम्मीद है कि अगर आप तक ये हमारी रिकॉर्डिंग पहुंच जाए तो आप अपने मुरब्बी साहब को फोन करके मैसेज करके कहेंगे कि इस मौलवी से मुनाजरा करो, दौड़ो ना, हिम्मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। जो ये कहते थे कि मर जाना है, जो ये कहते थे कि मर जाना है, उनसे जीने का हुनर जाना है। किसने सोचा था कि खुद से मिलकर अपनी आवाज से डर जाना है। जो 2 रोज पहले तक कह रहे थे कि आमिर नज़ीर से बात नहीं की जाएगी क्योंकि हमें कुरान ने मना किया है उससे बात करने से, खासकर 30 अक्टूबर 2024 के बाद कोई कुरान नाजिल हुआ है इनके यहाँ, क्योंकि मिर्जा साहब भी कहते थे 1857 के बाद 1857 में कुरान उठा लिया जाएगा, अल्लाह ताला ने बताया था इनको, फिर उसके बाद नया कुरान नाजिल हुआ है कादियान में। तो हो सकता है कि इनके यहाँ भी कोई नया कुरान नाजिल हुआ। 30 अक्टूबर 2024 को अंसर रजा साहब से बात हुई थी, उसके बाद अब वो कहते हैं कि कुरान में हुक्म आ गया है कि इनसे बात नहीं करनी। अच्छा, मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात, 1-2 बातें आपसे पूछनी है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एक बात में ही आप, मेरे ख्याल में दोनों बातें इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएंगी। मेरी गुजारिश इस तरह है कि जिस तरह आप शिगरी साहब के प्रोग्राम में गए थे, इसी तरह ही आप वो लाहौरी जमात के भी एक भाई गए थे और फिर गैर अहमदियों की तरफ से आमिर नज़ीर साहब भी गए थे वहाँ पर। तो उसके बाद शिगरी साहब ने ये उनके सामने कहा था, आमिर नज़ीर साहब के सामने, कि मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा अंसर रज़ा साहब और आप दोनों को इकट्ठे ही बुलाऊं। तो उस पर आमिर नज़ीर साहब ने तो यही कहा था उन्हें कि बिल्कुल मैं इसके लिए खुशी महसूस करता हूँ और मैं उनके साथ बैठूंगा भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं अंसर रज़ा साहब से पूछ के उनसे बात करके अगर वो रजामंद होंगे तो मैं फिर आपको बिठाऊंगा। तो उसके बाद अभी तक शिगरी साहब ने इस बारे में कोई बात नहीं की, तो क्या उन्होंने आपसे राब्ता कर लिया है या आपने इनकार कर दिया है या अभी तक आप इसके बारे में सोच रहे हैं? ये सवाल है जी। बात यह है कि हम चूंकि कुरान करीम के पैरोकार हैं और कुरान करीम ने जाहिलों से बात करने से मना किया है। आमिर नज़ीर को मैं आज से नहीं कई सालों से जानता हूँ और जितने भी लोग मैंने देखे हैं बड़े बड़े जाहिल हैं, तो ये उनमें से एक हैं। इसलिए शिगरी साहब ने मुझसे राब्ता किया था, उन्होंने 1-2 दफ़ा पूछा भी है, तो मैंने बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ उनको इनकार कर दिया था। तो मैं कहा जी आपने उनसे इंटरव्यू किया है, उन्होंने जो बातें की हैं उसके मैंने जवाब दे दिए हैं, बल्कि आज ही हमने एक प्रोग्राम अपलोड किया है जिसमें उनकी बातों का जवाब है। लेकिन आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करना, वो मैं कुरान करीम के हुक्म की रूह से मजबूर हूँ कि मैं इन जो अल्लाह से खिताब नहीं कर सकता, मुखातिब नहीं हो सकता। अगर वो गुफ्तगू जिन लोगों ने सुनी हुई है तो वो अंदाजा कर सकते हैं कि इन पर यह आयत क्यों नाजिल हुई है, वाइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इनकी वजह, इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जिसका नाम है आमिर नज़ीर, उसने एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम का एक उन्वान भी सजाया था। उन्वान कुछ इस किस्म का था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम का दावा नबूवत, हकीकत या ख्याल, इल्मी तज्ज़िया। अच्छा, अब इल्म का एक मतलब होता है और लफ्ज़ तज्ज़िया का भी एक मतलब होता है। अब ये टाइटल आपने बना लिया, देख लिया, लेकिन बात यही है कि आपको इल्म है कि तज्ज़िया कहते किसे हैं, तज्ज़िया का मतलब क्या होता है और किया किस तरीके से जाता है, इस पर तो फिर बात करेंगे बाद में। लेकिन एक इंटरव्यू आपने रिकॉर्ड कराया और उसका टाइटल आपने ये रख दिया। पहला उज़र जो उन्होंने पेश किया है वो ये है, कहते हैं कि इस उन्वान से वीडियो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का दावा, ख्याल या हकीकत। पहली तो बात ये है कि ये उन्वान उन्हीं ने दिया है जिनका ये चैनल था, उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उनकी मर्जी है उन्होंने क्या इसको उन्वान देना है। शमसुद्दीन शिगरी साहब बुनियादी तौर पर अहले तशय्यो से हैं, लेकिन वो सबको वेलकम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं,
गैर जानबदार सी उनकी हैसियत है, तो उन्होंने महसूस किया है कि इस गुफ्तगू का उन्वान ये होना चाहिए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का दावा नबूवत ये हकीकत है या ख्याल था, इसमें इस आजिज़ का कोई कसूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इल्मी तज्ज़िया, अब जाहिर है कि आप मुखालिफ हैं, आपको पसंद नहीं आएगा, आपको चाहिए कि उसमें से जो कुछ एग्जैजरेशन वगैरह की गई है, कोई ज्यादती वगैरह की गई है, उसको बयान करें। तो आइए सुन लेते हैं कि उस गुफ्तगू में इनको क्या एतराज़ात या अश्कालात पैदा हुए हैं, वो सुन के जवाब देते हैं इंशाल्लाह। जब अल्लाह ताला के मामूर दुनिया में आते हैं और वो अल्लाह ताला से इज़्न पाकर अपनी दावत का आगाज़ करते हैं, तो मुखालफत का आगाज़ तो वहीं से हो जाता है, उसी वक्त के साथ ही। सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साथ भी सुन्नत अंबिया के मुताबिक यही काम हुआ कि उधर आपने अपनी मामूलियत का ऐलान फरमाया, यानी आप ये हमारी जो नाज़रीन हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हजूर का एक काम शुरू हुआ था मज़ामीन लिखने से और मुनाजरे करने से, ईसाइयों और आर्य समाजियों को जवाब देने से। उस वक्त तक मुसलमानों में काफ़ी पजीराई मिली हजूर को, उलमा की तरफ से भी पजीराई मिली, लेकिन जब आपने मामूलियत का दावा कर दिया और आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर फाइज किया है, इस मकाम पर खड़ा किया है, तो मुखातबत शुरू हो गई। और वो लोग जो आपके पहले हमदर्द थे, आपके बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे, तौसीफ़ किया करते थे, वही लोग पलट गए। और ये हमेशा अंबिया के साथ ऐसे ही होता है। मालूम नहीं ये बात कब आप लोगों को बताएंगे अंसर रज़ा साहब कि मिर्ज़ा साहब की मुखालफत उनके दावे की वजह से नहीं, बल्कि उनके दावे से बहुत पहले उनके किरदार की वजह से हुई है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा। इसी वजह से आप सामने बैठकर ये बातें नहीं करते कि अकेले में बैठकर तो ये बातें की जा सकती हैं, लेकिन सामने बैठेंगे तो आपकी गिरफ्त हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपके मिर्ज़ा साहब का दावा नबूवत कब का था, कब उन्होंने दावा किया है मामूरियत का, वही बता दें, इल्हाम का वही बता दें। क्या उनके इल्हामात की वजह से मुखालफत हुई है? क्या उनके दावे मामूरियत की वजह से मुखालफत हुई है? क्या उनके दावे नबूवत की वजह से मुखालफत हुई है, या उनके किरदार की वजह से मुखालफत हुई है? 1887 में मकतूबात अहमद में जाकर खतूत उठाकर देखेंगे तो शेख बटालवी अलैहि रहमा के साथ जो उनकी खतो किताबत है वो बता रही है कि इनके ऊपर एतराज़ात इनके किरदार की वजह से हुए। लोगों ने पैसा दिया बराहीन अहमदिया की तसनीफ के लिए कि आप एक किताब लिखने का दावा कर रहे हैं, कि ऐसी किताब लिखेंगे जिसका मशरिक से लेकर मगरिब तक चर्चा होगा। उस किताब को लिखकर हम मुसलमानों के लिए ऐसे दलाइल फराहम कर देंगे कि हिंदुस्तान में कोई हिंदू कोई ईसाई उनका सामना नहीं कर सकेगा। तो लोगों ने आपको पैसे दिए किताब छापने के लिए, 10,000 रुपया बकौल आपको किताब के पैसे दिए गए, और 4 किताबें लिखकर 50 किताबों का वादा करके 4 किताबें लिखकर आपने चुप्पी साध ली। तो आप पर एतराज़ात यहाँ से शुरू हुए, आपके दावे की वजह से नहीं हुए। झूठ बोलना बंद करें अंसर रज़ा साहब, सच बोलें और लोगों को बताएं कि मिर्ज़ा साहब पर एतराज़ात उनकी बदकलामी की वजह से हुए। 1887 की उन्हीं मकतूबात में लिखा हुआ है, शेख बटालवी का खत पढ़ के देखें। वो कह रहे हैं कि ये बदकलामी जो आप दूसरे मज़ाहब के अकाबरीन के मुतल्लक़ करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि वो पैगम्बर इस्लाम पर बदजुबानी करेंगे, और ऐसा हुआ भी दर हकीकत। याद है, फिर खुद नुमाई से बचें। ये अपनी जो इश्तिहार ये है ना कि पेशगोई मुझे खुदा ने दी है, बेटा होगा बेटा होगा, इसको छोड़ें, सच बताएं। लेकिन नहीं बताएंगे, लोगों को बताएं कि ये इख्तलाफात थे, दावे नबूवत और दावे मामूरियत और दावे इल्हाम की वजह से मुखालफत नहीं हुई, उनके किरदार की वजह से उन पर एतराज़ात हुए। कई दफा ये बातें बयान की जा चुकी हैं, लेकिन आपकी जिद है कि आपने सच का इनकार करके झूठ को बयान करते जाना है कि नहीं उनकी मुखालफत हुई उनके दावे मामूरियत की वजह से, दावे नबूवत की वजह से। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को हुजूर ने दावत दी कि तुम कादियान आओ और यहाँ आके बैठकर उनसे बात करो। वो कादियान जरूर गए लेकिन हुजूर से नहीं मिले, और वापस आकर उन्होंने अपना नाम नेहाद एक किताब फातिह कादियान रख लिया। ये रहा आपका दूसरा झूठ। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान गए, वहां से मिर्जा साहब को मिले बगैर वापस आ गए और आकर फातिह कादियान रसाला छाप दिया।
अंसार रजा साहब कब सच बोलेंगे लोगों के सामने, कब सच बयान करेंगे? आपके मिर्जा साहब ने एजाज अहमदी में लिखा हुआ है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के हवाले से अनकरीब हमारे 3 मोजज़े जाहिर होंगे, 3 करामतें जाहिर होंगी, 3 निशानात जाहिर होंगे। वो कौन से हैं? वो मोजज़ा था कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब कादियान में नहीं आएंगे मेरी पेशगोई की पड़ताल के लिए। दावत दी है मैंने, उनको कहा है कि मेरी पेशगोई के लिए, उनकी पड़ताल के लिए कादियान आओ, एक पेशगोई के बदले 100 रुपया मैं आपको इनाम दूंगा। 150 पेशगोई मैंने नज़ुलुल मसीह में लिखी हुई है, 15,000 रुपया आपको दिया जाएगा। अगर आप 150 पेशगोई की पड़ताल करके जाएंगे, 15,000 रुपया आपको दिया जाएगा, आने जाने का खर्च अलहदा दिया जाएगा। खामखा आप दर दर की खाक छान रहे हैं, वाज और कफन के पैसों पर आपका गुजारा है। ये जुबान है आपके मसीह मौद की, और इस जुबान को वापस लेना पड़ा, ये अल्फाज वापस लेने पड़े कि हमने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में ये जो बात कही है कि उनका वाज और कफन के पैसों पर गुजारा है, इसकी हम इस्लाह करते हैं, अपने अल्फाज वापस लेते हैं। बहरहाल वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान आए और आप बता रहे हैं कि वो मिर्जा साहब से मिले बगैर चले गए वापस। मतलब मिर्जा साहब को पता ही नहीं चला कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी आए हैं, कादियान को हाथ लगा के चले गए। कितने झूठ आप बोलते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने आके कादियान में मिर्जा साहब को खत लिखा, रुक्का लिखा, गली में खड़े होके कि मिर्जा साहब मैं कादियान आ गया हूं आपकी दावत पर, बताइए कैसे पेशगोई की पड़ताल करनी है, मैं आपकी पेशगोई की पड़ताल के लिए आया हूं। जवाब ये मिला कि हमने तो जब अजामे आदम लिखा था 1896 में, तब से ही हमने आप लोगों से गुफ्तगू करने से तौबा कर ली थी, मुनाजरा करने से तौबा कर ली थी। जिस तरह आप कह रहे हैं ना, कुरान में आयत नाज़िल हो गई थी, वाइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, इसलिए हमने आपसे बात नहीं करनी। तो क्यों दावत देके बुलाया उनको? बहरहाल वो आए, रुक्का लिखा, आपके मिर्जा साहब ने कहा एक शर्त पर पेशगोई की पड़ताल हो सकती है, और वो शर्त पता है क्या बताई थी? ऐसी शर्मनाक शर्त बताई है कि सर शर्म से झुक जाए उस बंदे का जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पैरोकार है। कहते हैं तुम एक सतर लिखोगे मेरी पेशगोई के ऊपर, अगर एतराज करना है तुम एक सतर एतराज का लिखोगे या 2 सतरें लिखोगे, मैं उस पर 1 घंटा तकरीर करूंगा। ये शर्त है, अगर तुम्हारा दिल करे तो पेशगोई की पड़ताल कर लेते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा आपकी ये शर्त भी मैं मंजूर करने के लिए तैयार हूं, आइए मैं वो जो 1 या 2 सतर है लिख कर नहीं, सिर्फ बोल कर एतराज करूंगा। मिर्जा साहब खौफजदा हो गए कि मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा, ये बंदा 1 या 2 सतर बोल कर कहेगा तो मेरी सारी झूठ की कलई खोल देगा। उसको भी कबूल नहीं किया गया और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वापस चले गए। और फातेह कादियान तब नहीं लिखा, 1912 में लिखा था। उसके बाद फिर जब फसादात हुए हैं, बल्कि नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, 1935 की, 34-35 की बात है, जब अहरारी जमात ने अताउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में कादियान पर एक किस्म का हल्ला बोल दिया और एक नहती जमात के ऊपर हुकूमत की सरपरस्ती में उन्होंने कोशिश की कि बलवा करें, लेकिन वो नहीं हुआ। वो भी फातेह कादियान ठहरे कि वहाँ जाकर उन्होंने बड़के मारी हैं और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मियाँ मिर्ज़ा महमूद तुम अपने बाप का दीन लेकर आओ, मैं अपने नाना का दीन लेकर आता हूँ। इस तरह के जज्बाती नारे और इस तरह की बातें। अरे नहीं अंसार रजा साहब, उन्होंने कहा था, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था कि तुम अपने बाप की सुन्नत के मुताबिक टॉनिक वाइन पी कर आना, मैं अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए जौ की रोटी खा के आऊँगा, क्योंकि वो सादात थे, सैयद थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने नाना की सुन्नत के मुताबिक जौ की रोटी खा के आऊँगा, तुम अपने बाप की सुन्नत के मुताबिक टॉनिक वाइन पी कर आना। इस बात पर उन पर पर्चा हुआ और उन्होंने पर्चा झीला, उनको सजा भी हुई, लेकिन उन्होंने GD खोसला डिस्ट्रिक्ट सेक्शन जज गुरदासपुर के सामने इस बात का सबूत पेश कर दिया कि आपके खलीफा ने भी वहाँ उसके सामने तस्लीम किया, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर के सामने, कि हाँ मेरे वालिद ने टॉनिक वाइन पी थी और वो एक ऐसा शख्स था जिसको आप रंगीन मिजाज आदमी कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर GD खोसला की रिपोर्ट आपके अल-फजल अखबार में छपी हुई है, वहाँ से जाकर पढ़ें। ये काम चलते चलते मंजूर चन्योटी तक जा पहुंचा, जिसने चनाब के पुल पर खड़े होकर उस वक्त के खलीफा को पुकारा कि जी आए हमसे मुबाहला कर लें, मुनाजरा कर लें, ये वो सारे, मतलब जो एक बाजदारी किस्म के स्टाइल उनके होते हैं। तो वो फिर खुद को फातेह रब्बा कहलाने लगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि चाहे वो सनाउल्लाह अमृतसरी हो या मोहम्मद हसन बटालवी हो, पीर मेहर अली शाह हो, रशीद अहमद गंगोई हो, अशरफ अली थानवी हो, अताउल्लाह शाह बुखारी से लेकर चन्योटी तक, ये तमाम लोग इन्हीं कोशिशों में मसरूफ थे जो आज अहमद नज़ीर ने की है और जो इस तरह के बहुत से लोग और भी कर रहे हैं।
لیکن یہ سارے کے سارے ناکام و نامراد اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے، اور احمدیہ مسلم جماعت نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ پر قائم ہے بلکہ پھلتی پھولتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے۔ جی ان کی ناکامی اور نامرادی کا یہ ثبوت ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ پوری دنیا کے مسلمان تہہ دل سے اس کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مخرج من الملہ ہے۔ یہ ان کی ناکامی اور نامرادی کا ثبوت ہے کہ آپ کسی اسلامی ملک میں پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ انڈونیشیا سے لے کر موروکو تک کسی اسلامی ملک میں آپ کو جگہ نہیں ملی۔ جو آما ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو میرے عفو بندہ نواز میں۔ یورپ، برطانیہ، یو ایس اے، یو کے وغیرہ میں، کینیڈا وغیرہ میں آپ کی جائے پناہ ہے، کسی اسلامی ملک میں آپ کی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ ان کی ناکامی اور نامرادی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا آپ قادیان میں اپنے نام سے اسٹامپ جاری کیا کرتے تھے، اشتہارات جاری کیا کرتے تھے، لوگوں کو مجبور ہونا پڑتا تھا کہ وہ آپ کی اجازت سے قادیان میں رہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر قادیان میں نہ رہیں۔ قادیان بدر کر دیا کرتے تھے لوگوں کو، آپ سزائیں دیتے تھے، بندے قتل کروائے آپ نے قادیان میں۔ قادیان میں آپ کا توتی بولتا تھا، یہاں تک کہ قادیان سے باہر نکل کر ضلع گرداسپور تک آپ کا توتی بولنے لگا۔ اور آج آپ کی کامیابی اور کامرانی کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ کی زمین آپ پر تنگ ہو گئی ہے، اور آپ کے لیے صرف جائے پناہ ملحدین کی یہ زمین ہے جو یورپ اور یو کے وغیرہ کی ہے۔ ان کا بھی یہی حال ہے۔ اپنی دکانداری سے جانے کے لیے انہوں نے مخالفت کرنی ہے، اس کا حل نہیں تلاش کرنا، اور یہ نہیں کہنا کہ جی آئیں بیٹھ کے ایک متفقہ اور مشترکہ معیار پر ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ جو اسلام کی تعلیم ہے، چاہے وہ قرآن میں سے ہو یا سنت میں ہو یا حدیث میں ہو، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو قرآن مجید کی بنیاد پر اس کی روشنی میں آپ حل کر لیں۔ تو اس طرف آپ آتے نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بس میں نے تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم کافر ہو، میں تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم غلط ہو، تم جھوٹے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ تو حل تو تلاش وہ کرے نا جو حل تلاش کرنا چاہتا ہو۔ بھائی کون سا حل تلاش کیا جائے، کیسا حل تلاش کیا جائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی متفقہ لاہ عمل کون سا تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کیا جائے، کچھ آپ لے لیں کچھ ہم لے لیں۔ یہ دین ہے، دین میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے بات، کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا کہ کچھ آپ کی بات مان لی جائے کچھ ہماری مان لی جائے۔ یہ مشرکین والا مطالبہ یہ یہاں نہیں چلنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں یہ مطالبہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا کہ کچھ آپ کی مان لی جائے کچھ ہماری مان لی جائے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آیت میثاق النبیین میں مصدق رسول سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ صف کی آیت اسمہ احمد والی، اس میں جو مسیح علیہ السلام کی بشارت ہے کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، آپ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کلمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی بھی داخلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ یہ باتیں کہیں گے تو آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کون سا حل تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی حل ہے، یا اس کفری عقیدے کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، یا اس کو الگ مذہب اس کو نام دے لیں۔ اسلام کے اندر اس عقیدے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بالکل قطعاً۔ تو گیو اینڈ ٹیک کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اسی پروگرام میں امن جی نے کہا، جب وہ شکری صاحب نے جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ جی اس وقت جو لوگ تھے مرزا صاحب کے زمانے کے، انہوں نے تو بڑی اخلاص اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کو مانا۔ تو کہتے ہیں نہیں، بات یہ ہے، امن جی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، شریعت کا، اسلام کا، دین کا اتنا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بیوقوفی میں آ کر مرزا صاحب کو مان لیا۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج 2025 میں پورا دین، پوری شریعت ہماری فنگر ٹپس پہ پڑی ہوئی ہے، یعنی ٹچ موبائل پہ، اور آپ اس کو اشارہ کریں، کلک کریں تو قرآن بھی سامنے آ جائے گا، حدیث بھی سامنے آ جائے گی۔
لیکن آپ ان کا پورا انٹرویو دیکھ لیں، اس میں انہوں نے ایک دفعہ بھی ایک بھی آیت ایک بھی حدیث پیش نہیں کی. بھائی انصر رضا صاحب، کون سی حدیث آپ چاہتے ہیں اور کون سی قرآن کی آیت آپ چاہتے ہیں؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیث تو ہے ہی نہیں. دنیا میں حدیثیں نہ بھی ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مرزا صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے دعوے کی بنیاد یا قرآن ہے یا وہ الہام ہے جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے. حدیثیں تو ہم تائیدی طور پر جو ہیں نا ان کو لیتے ہیں جو ان کی تائید کریں، لیکن اگر کوئی حدیث میرے الہام کے خلاف ہو یا قرآن کے خلاف ہو اس کو ہم ردی سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. اعجاز احمدی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. اب بتائیں، آپ کو حدیث پیش کرنی چاہیے؟ جہاں تک قرآن کی آیت کی بات ہے تو قرآن کی آیت کے بارے میں بھی آپ کے دوسرے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی قرآن نہیں سوائے اس کے جو ہمارا مسیح موعود جس کی تصدیق ہے، کوئی قرآن نہیں ہے. تو قرآن کی آیات بھی آپ کے مسیح موعود نے الہامات نازل ہونے سے پہلے ان کے معنی کچھ کیے، لیکن جب وہ الہامات نازل ہو گئے تو پھر قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بھی بدل دیا. تو اصل تو آپ کی بنیاد وہ الہامات ہیں جن کی بنا پر قرآن کریم کا بھی معنی بدل دیا گیا، اور حدیثیں بھی صرف وہ آپ لیتے ہیں جو ان الہامات سے مطابقت رکھیں. جو مرزا صاحب کے الہام کے خلاف حدیث ہو اس کو آپ ردی سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. تو بتائیں کہ کون سا قرآن اور کون سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے؟ آپ کے سامنے مرزا صاحب کی کتب سے حوالے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو 85 کتابیں ہیں یہ قرآن کریم کی ہی تفاسیر ہیں، یہ تفسیریں ہی ہیں. تو قرآن کریم سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا جاتا ہے مرزا صاحب کی کتب سے وہی اصل آپ کی بنیاد ہے. اس کو قبول کریں، اسی سے جواب دینے کی کوشش کیا کریں. اچھا، ایک اور نقطہ جو انہوں نے اٹھایا جس کو علمی کہا شاید انہوں نے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کسی بھی شخص کی سوانح عمری کہہ لیجئے یا اس کی سیرت کے بارے میں، سیرت نگاری جب کی جاتی ہے تو چونکہ ایسی کتابیں معتقدین لکھتے ہیں تو وہ معتقدین کی لکھی ہوئی کتابیں قابل اعتبار نہیں ہوتی، بلکہ کتاب تو کسی غیر جانبدار شخص کو لکھنی چاہیے. اچھا، وہ تجزیہ والے بتائیں گے خود ہی کہ غیر جانبدار شخص کو کیا الہام ہوگا؟ وہ بھی تو کسی جاننے والوں سے ہی پوچھے گا اور اس کے قریب رہنے والے اشخاص سے ہی پوچھا جائے گا کہ وہ شخص کیسا تھا. لیکن چلیے، آپ نے کہا کہ غیر جانبدار شخص کی کتابیں قابل اعتبار یا جانبدار شخص کی کتابیں قابل اعتبار نہیں ہیں. اسی لیے مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کے کہنے پر مولوی ثناء اللہ امرتسری نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے حالات پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام ہے تاریخ مرزا. اچھا، اس کتاب کا حوالہ دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں انصر صاحب. پہلا سوال، کیا ثناء اللہ امرتسری ایک غیر جانبدار شخص تھا؟ پہلا سوال ہے میرا، جس کو آپ نے غیر جانبدار کہہ دیا، کس تجزیے میں وہ غیر جانبدار ہے یہ بتائیے. اور کیا وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام حالات سے واقف تھا؟ اس نے ساری زندگی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دیکھی ہوئی تھی یا نہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا جو ذکر کیا انہوں نے، اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ سوال یہ، اب تجزیہ کر رہے ہیں نا، تو کیا یہ کتاب آج ایک مستند دستاویز کے طور پر پہچانی جاتی ہے اور اس کتاب کے حوالے جگہ جگہ ہمیں ملتے ہیں؟ میں تو آپ کے کہنے پہ انٹرنیٹ پہ انصر صاحب ڈھونڈا ہے، مجھے تو بڑی مشکل ہوئی ہے. آپ کے پاس شاید ہو، اور جس کو کتاب کہا گیا وہ شاید کتاب ذہن میں آ رہا تھا، کچھ سیرت لکھی ہے، کچھ 4000 صفحوں کی، 400 صفحوں کی. تو ذرا تجزیہ کیجئے، بتائیے، ان سب سوالوں کے جواب دیجیے آپ مجھے. آپ نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ آپ چونکہ اہل زبان ہیں اس لیے آپ کو اس بات سے بڑی ایک قسم کی کراہت ہو رہی ہے کہ وہ تجزیہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور تجزیہ کیا نہیں. لیکن آپ نے اہل زبان ہو کر تجزیہ کا حق ادا کر دیا ماشاءاللہ. یعنی انہوں نے جو کہا کہ چونکہ سیرت کی کتابیں معتقدین لکھتے ہیں اور وہ قابل اعتبار ہو نہیں سکتے، اس لیے کسی غیر جانبدار شخص کو کتاب لکھنی چاہیے. پھر اس کے اوپر آپ نے خوب تجزیہ کیا، یہ جو نکات آپ نے بیان کیے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی کو لیتے ہیں کہ سیرت کی کتابیں معتقدین لکھتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، طبری اور اس کے بعد جتنی بھی سیرت کی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں وہ معتقدین نے لکھی ہیں یا غیر جانبدار شخص نے لکھی ہیں؟ کیونکہ آپ کے اس ایک جملے سے وہ تمام سیرت کی کتابیں جو ابن اسحاق سے شروع ہو کر آج تک چلی آ رہی ہیں وہ بیک جنبش قلم
नाकाबिल एतबार हो गई, नाकाबिल एतबार हो। सारी की सारी नाकाबिल एतबार हो गई। आपका एक जुमला जो है, वो जो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी लिखा करते थे कि मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी, तो मैं भी ये कहता हूँ कि अहमद नज़ीर लाख पे भारी है ये जुमला तेरा। ये जुमला मेरा कहाँ है? मैंने तो ये कहा है कि जो इनके मुतक़दीन ने इनकी सवान उमरी लिखी है उसमें एक ख़ास किस्म का इंक्लिनेशन पाया जाता है, झुकाव पाया जाता है। एक अजनबी बंदा जो इनकी तरफ झुकाव नहीं रखता उसके लिए ये मुफीद नहीं है। उसके लिए कोई ऐसी बायोग्राफी मुफीद होगी जो किसी गैर जानिबदार बंदे ने लिखी होगी, जिसमें कोई झुकाव नहीं पाया जाता होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि मुतक़दीन जो सीरत की किताबें लिखते हैं और चूंकि नाकाबिल एतबार होती हैं इसलिए उसके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए, उससे हम किसी शख्स के हालात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फिर ये सारी सीरत की किताबें बिल्कुल नौजुबिल्लाह रद्दी की टोकरी में डालने के लायक हैं कि वो बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है। दूसरी बात यह है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने अपनी उस किताब में, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो किताब भी नहीं है, वो किताबचा है छोटा सा, और किताबचा भी मैं लफ्ज़ एक ही सांस में अदा कर रहा हूँ। हमारे एक वहाँ पे थे बड़े ज़रीफ किस्म के इंसान, एमडी नहीं थे वैसे वो, तो वो इसको टुकड़ों में बोला करते थे लफ्ज़ किताबचे को जी, तो सिलेबस बना के ना उसको वो बयान किया करते, तो लेकिन मैंने एक ही सांस में कह दिया। तो ये किताबचा है। फिर आप कहते हैं कि हमने तो समझा था कोई एक ज़ख़ीम किताब होगी, कोई 1000 सफ़े की। भाई हम पंजाबी में कहते हैं कद पर ही लद होता है, जितना आपका कद है उसी के हिसाब से वज़न होगा। आपकी कितनी बड़ी शख्सियत है, कितने लोग आपको दुनिया में जानते हैं, उसी एतबार से ही आपकी बायोग्राफी लिखी जाएगी ना। अगर आप दुनिया में एक मारूफ शख्सियत है, तमाम अक़वाम, तमाम मज़ाहब में, तमाम ममालिक में आपको जाना पहचाना जाता है, तो उसी हिसाब से आपकी बायोग्राफी होगी। लेकिन अगर आपको पंजाब से बाहर जानता ही कोई नहीं है, दुनिया की किसी कौम से आपका तारुफ ही नहीं है, तो जितना किताबचा लिख दिया ये भी ज़रूरत से ज़्यादा है, काफ़ी है। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन वो शख्स जो हजूर के साथ मदरसे में पढ़ता रहा है, यानी मोहम्मद साहब बटालवी, उसको क्यों नहीं कहा कि तुम लिखो? और उसने अपने रिव्यू में लिखा भी है अशात सुन्ना के अंदर कि मुअल्लफ के हालात से जिस कदर हम वाकिफ हैं उतना कोई वाकिफ नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते रहे हैं बचपन में। भाई कौन से मदरसे में पढ़ते रहे हैं? शेख बटालवी और आपके मिर्जा साहब किस मदरसे में पढ़ते रहे हैं? वो एक उस्ताद के पास एक मजमून इकट्ठे पढ़ते रहे, इतनी सी बात है। कौन सा वो किसी मदरसे? शेख बटालवी तो दिल्ली के मदरसे से पढ़ के फारिग होके आए हैं, जो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी का मदरसा था, तो वहाँ तो आपके मिर्जा साहब पढ़ने नहीं गए। अब आपने ये कहा कि जब ये कहा गया कि जी चूंकि सीरत की किताबें मुतक़दीन लिखेंगे वो नाकाबिल एतबार होंगी, तो गैर जानिबदार को लिखना चाहिए। तो गैर जानिबदार मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी हैं, क्योंकि जो मानने वाला है वो भी जानिबदार है और जो मुखालफत करने वाला है वो भी जानिबदार है। वो भी जानिबदार है, वो पक्का जानिबदार है, बल्कि वो तो ज्यादा खतरनाक है इसलिए कि वो मुखालफत में लिखेगा। जो मानने वाला है वो तो चलो अपनी खुश अकीदगी की वजह से थोड़ी बहुत और उसमें बातें उसमें बयान कर दी, लेकिन जो मुखालफत करने वाला है वो तो सख्त तासुब से लिखेगा। वो तो कोशिश करेगा कि कोई ऐसी गलत बात मुझे मिले तो मैं इस शख्स के बारे में लिखूं ताकि मैं उसको बदनाम कर सकूं। भाई मैंने आपको अर्ज किया है कि कोई वो तासुब की मिसाल तो पेश करे ना, कि उस तारीख मिर्जा में कौन सी बात उन्होंने तासुब के साथ लिखी है। कोई बात आप पेश कर सकते हैं या की है आपने बात? इसका मतलब तो ये होगा कि आप इब्न हिशाम की या इब्न इस्हाक की सीरत को छोड़ दें और जो विलियम मेयर ने लिखी है उसको पकड़ लें, या जो दूसरे लोगों ने लिखी है उसको पकड़ लें, जिसमें कहा गया हो कि जी वो जो मॉन्टगोमरी वॉट है उसने 2 किताबें लिखी ना, एक मोहम्मद एट मक्का और मोहम्मद एट मदीना। तो वो कहता है जी मोहम्मद एट मक्का जो थे वो बिल्कुल एक इसराइली नबी की तरह पाक बाज और खुदा के करीब और ये वो सारा, लेकिन जैसे ही वो मदीना में आए हैं वहाँ पे एक जंगजू हुक्मरान बन गए हैं, शादियों पे शादियाँ और लूट मार और कत्लो गारत नौजुबिल्लाह, तो सारे के सारे काम कर रहे हैं। भाई अंसर रजा साहब, सवाल तो ये है ना, मॉन्टगोमरी वॉट ने ये जो बकवास लिखी है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, इसका कोई सबूत उसने दिया है? ये तो अंडरस्टूड बात है ना, तासुब से और बुग़्ज़ से भरी हुई बात है जो बगैर हवाले के है, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के है। नबी अलैहिस्सलाम ने किसका माल लूटा, किसकी इज्जत पे हाथ डाला, किसका हक छीना? नबी अलैहिस्सलाम ने तो 13 साल सब्र किया। उसके बाद मदीना में भी आने के बाद जो अहले मक्का थे, जो अहले कुरैश थे, वो उनको वहां भी आके पीछा कर रहे थे, वहां भी उनको सुकून से रहने नहीं दे रहे थे ना। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने बगैर उनके पीछा किए हुए
अपनी पुरस्कून जिंदगी को छोड़ छाड़ कर किसी का माल लूटा, किसी पर हमला किया, तो बताएं। तो बगैर दलील की जो बात होती है पता चल जाती है ना कि ये तासुब पर मबनी बात है। क्या आप बताएंगे कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने आपके मिर्जा साहब की इस बायोग्राफी में कौन सी बात है जो बगैर दलील के लिखी है और तासुब से लिखी है, वो बताएं। आज आप किसी बंदे से आम से जाके पूछ लें अहले हदीस से कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कौन है, वो जी मुझे नहीं पता। लेकिन जब उसको जमात अहमदिया का तारुफ कराया जाए तो उससे वो कहा हाँ हाँ अच्छा वो जिसका मेरे साहब से मुबाहिला हुआ था, वो भी नहीं हुआ था। मुबाहिला तो हुआ था, मुबाहिला तो आपके मुंह से निकल गया है और सच अपनी ताकत के बलबूते पर निकल आता है। मुबाहिला तो हुआ था। वो जो मिर्जा साहब ने आखिरी फैसला इश्तिहार के नाम से दुआ शाया की है ना, वो मुबाहिले ही के रंग में एक दुआ थी और वो अपना असर लेकर आई है। 15 अप्रैल 1907 को मिर्जा साहब ने कहा, या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ मुझे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी में मार दे, लेकिन अगर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी सब झूठे हैं तो उन्हें मेरी ज़िंदगी में मार दे। ये मिर्जा साहब ने मुबाहिला अल्लाह ताला से किया और वो मुबाहिला 26 मई 1908 को अपना रंग लेकर आया और मिर्जा साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन आपने माना नहीं। मिर्जा साहब ने कहा था अगर मैं झूठा हूँ तो मैं मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी ही में मर जाऊंगा, और वो मर गए, लेकिन आपने माना नहीं क्योंकि बड़े ज़िद्दी लोग हैं आप। अब ये कहना कि जी पहले कभी झूठ नहीं बोला, पहले जिंदगी की मिसाल जो आप देते हैं वो बात ही गलत है। सभी तो तारीखी तौर पे हवाले मौजूद हैं, साबित है बातें, इसका क्या जवाब हम दें? देखिए बात यह है कि जो अमन नज़ीर ने कहा है कि अहमदी जो है वो सूरह यूनुस की जो आयत है फ़क़द लबिस्तुफ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही फ़ला ताक़िलून, तो वो पेश करके इतराज़ करते हैं कि जी मिर्जा साहब के दावे से पहले तो बड़ी तारीफें किया करते थे। भाई आप तो कह रहे थे कि मैंने कोई कुरान की आयत पढ़ी नहीं है पूरे प्रोग्राम में, इसी मुंह से भी आप कह रहे थे, इसी जुबान से कह रहे थे ना कि अमर नज़ीर ने वहां पर कोई आयत कुरान की पढ़ी नहीं है। अभी कह रहे हैं कि वहां पर कुरान की आयत पढ़ी, फ़क़द लबिस्तुफ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। वो कहते हैं असल में इतराज़ात पहले भी थे। अब इसमें बहुत बदकिस्मती की बात यह है कि वो कुरान को समझते नहीं है। कुरान ने जो ये आयत है उसमें ये फरमाया है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजारी है, तो उससे पहले वो ये है कि वल्लाहु शाअ अल्लाहु मा तलौतु अलैकुम वला अदराकुम बिही, अगर अल्लाह चाहता तो मैं इस आयत कुरान की तुम पर तिलावत ही ना करता, बल्कि मैं तुमको इसके बारे में बताता भी ना। अब इसमें वो कलाम इलाही को पेश कर रहे हैं कि मैंने कलाम इलाही पेश किया, तुमने इसका इनकार कर दिया, तुमने कहा तुम झूठ बोलते हो। यही कहा ना कि तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह की तरफ से नहीं है ये। तो वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो मा तलौतु अलैकुम वला अदराकुम बिही, मैं ना इसकी तिलावत करता ना मैं तुम्हें इसके बारे में खबर भी देता, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजारी है, तुम अकल नहीं करते। तो यहाँ बात इतराज़ात की नहीं हो रही, यहाँ बात सच और झूठ की हो रही है। और इसकी तफसीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी कि जब सफा पे चढ़ कर ये कहा कि मैं तुम्हारे पीछे, अगर इस पहाड़ी के पीछे एक फौज है तो तुम मेरी बात मान लोगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मान लेंगे, माँ जरबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने तुमसे सिवाय सच्चाई के कोई तजुर्बा नहीं किया। तो मेयार क्या बताया जा रहा है? अपना सच्चा होना, इतराज़ात करना नहीं, अपना सच्चा होना। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसी बात को पेश फरमाया है। तो फरमाते हैं कि तुम मेरी पहली जिंदगी पर किसी किस्म का कोई ऐब, कोई नुक्ताचीनी नहीं लगा सकते कि चूंकि ये पहले भी झूठ बोलता था, इसने अभी झूठ ही बोला होगा। भाई झूठ ही बोला ना, और झूठ किस तरह का होता है अंसर रज़ा साहब? जब लोगों ने आपको किताब की अशात के लिए पैसे दिए और आपने वादा किया कि मैं किताबें छाप कर इस्लाम की मदद करूंगा, तो आपने किताबें ना छाप कर और उन लोगों के पैसे को हड़प करके झूठ ही बोला ना लोगों से, वादा खिलाफी की, झूठ बोला। झूठ और किस तरह का होता है? जहां तक बात है खिलाफ हकीकत बातें बयान करने की, तो वो मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में जा बजा ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो खिलाफ हकीकत है, ऐसा झूठ है कि जिनको आज भी कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता, उनका जवाब नहीं दे सकता। मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है भाई तफसीर इब्ने कसीर में, हुदैबिया के किस्से में लिखा हुआ है कि कई सच्चे लोग मुर्ताद हो गए थे। कहाँ लिखा हुआ है तफसीर इब्ने कसीर में? इधर ये तफसीर इब्ने कसीर आपके घर में भी होगी, खोल के दिखाएं उसमें से कहाँ लिखा हुआ है ये। इसी तरह से और बहुत सारी बातें हैं मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में लोगों के खिलाफ लिखी हैं। लोग सामने खड़े होकर कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। मौलाना बटालवी के बारे में लिखा कि भाई इनको अदालत में कुर्सी नहीं मिली थी, शेख बटालवी उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, अदालत में इस तरह का वाकया नहीं हुआ।
डॉक्टर जगन्नाथ के बारे में कहा कि वो भाग गया डॉक्टर अब्दुल हकीम, उस क्या नाम है, हकीम नूरदीन के बिलमुकाबल। अब डॉक्टर जगन्नाथ सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मिर्जा साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं भागा, आपका मुरीद भागा है। और राजा अमर सिंह जो कश्मीर का राजा था उसने इनको बचाया, हकीम नूरदीन को। तो खिलाफ हकीकत तो बातें मिर्जा साहब ने हर एक किताब में, बल्कि हर एक सफ़े पे लिखी, इतने झूठ लिखे हुए हैं कि उनको आज भी कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता। फिर कश्फुल गुता खोलें, मिर्जा साहब का रसाला है, उसमें खुद मिर्जा साहब ने जिक्र किया है कि शेख बटालवी ने मुझसे पूछा है कि क्या आपका कोई इस तरह का इल्हाम है सल्तनत बरतानिया ता हफ्ते साल बाद अज़ां बाशद खिलाफ इख्तिलाफ। तो कहते हैं भाई इसका जवाब मैं क्या दूं, झूठे पर खुदा की लानत हो। ना मैंने कोई इस तरह का इल्हाम किसी किताब में शाया किया, ना मैंने कभी किसी को ज़बानी सुनाया। कोई ऐसा इल्हाम है, मानने से मुकर गए, हालांकि वो इल्हाम था मिर्जा साहब का। तो झूठ तो बाद में बोला जाए, पहले बोला जाए। झूठ तो खुद बोल बोल के कह रहा है कि ये झूठ है। मिर्जा साहब ने कश्फुल गता में जो बात कही है अपने इल्हाम के बारे में, सल्तनत बरतानिया ता हफ्ते साल, उनके बेटे ने कहा हुआ है कि ये उनका इल्हाम है, सीरतुल मादी में वो लिखा हुआ है। और ये भी उन्होंने बताया उनके बेटे ने कि किसी खास मसलहत की बिना पर इसको उस वक्त शाया नहीं किया गया था, क्योंकि बरतानवी हुकूमत के खिलाफ था ना, तो इसलिए उस वक्त इसको शाया नहीं किया गया। लेकिन मिर्जा साहब साफ ही मुकर गए, मेरा इल्हाम है ही कोई नहीं। तो झूठ ही होता है, पहले बोला जाए बाद में बोला जाए। जो मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी ने जो इतराज़ात किए हैं उसमें एक बात है, इन्होंने खुद ही उनको मुनाफिक बना दिया आमन नज़ीर ने, कि जिसको वो पेश कर रहे थे कहते हैं वो था ही मुनाफिक। यानी उन्होंने अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो यही बात साबित करती है। वो कहते हैं जी होता ये था कि मौलवी बटालवी साहब जो हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे में लाया करते थे, रिव्यू लिखा करते थे, और फिर लोगों को इस बात के ऊपर उकसाया करते थे कि जी तुम इसकी किताबें खरीदो, इसकी मदद करो, ये इस्लाम का बड़ा हामी है, ये तो ऐसा बंदा तो पहले कभी पैदा नहीं हुआ और आइंदा भी शायद ही पैदा हो। और फिर अंदर खाते खतूत लिखकर उन पर इतराज़ किया करते थे। और इतराज़ क्या करते थे, इतराज़ ये करते थे कि जी तुमने लोगों से पैसे लिए, तुमने किताबें नहीं लिखी। लोगों को कह रहे किताबें बहुत अच्छी लिख रहा है, तुम इसको पैसे दो, और इनको कह रहे तुमने पैसे ले लिए, किताब नहीं लिखी, मैंने तो आपकी बड़ी तारीफें की थी। दूसरा ये कि आप इसमें अपनी बातें शामिल कर रहे हैं। आपने अब वो बेटे की पेशगोई कर दी, क्योंकि ये मामूर नहीं है ना, इनको उस मकाम का, उस कूचे का पता ही नहीं है कि जो मामूर होता है वो किस कूचे से गुजर करता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जी तुम बेटे की पेशगोई जो है ना उसको ना लोगों में उसकी अशात करो, उसको शाया ना करो। लेकिन जाहिर है कि हजूर को तो अल्लाह ताला का हुक्म था, हजूर ने कह दिया। उसके बाद हुआ ये कि जैसे अल्लाह ताला मोमिनों के ईमान की आजमाइश करता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी आजमाइश हुई। अल्लाह ताला ने हजूर को ये तो बता दिया कि एक मौत बेटा पैदा होगा, लेकिन वो कब होगा और कौन से हमल से होगा ये अल्लाह ताला ने नहीं बताया। इसलिए कि ईमान तो बिलगैब होता है। जब हजूर ने कहा कि बेटा होगा तो होगा, कहते हैं जी फिर पहले बेटी हो गई, लोगों ने बड़ा शोम चाहा, फिर एक बेटा हुआ वो मर गया, फिर एक और बेटा हुआ वो मर गया। लेकिन आगे ये नहीं बताया कि फिर वो बेटा हो भी गया जी। जो मौत बेटा था, फिर उसका ये नहीं बताया उन्होंने कि फिर वो बेटा पैदा हो गया, और उसके अंदर जो खुसूसियात बताई गई थी वो सारी की सारी पूरी हुई, और वो जो 52 खुसूसियात थी उनके हिसाब से उन्होंने 52 साल फिर खिलाफत भी की। भाई अंसर रजा साहब, वो बेटा तो मिर्जा साहब ने पेश करना था ना हिंदुओं को, मुंशी इंदरमन मुरादाबादी को, पंडित लेखराम वगैरह को। जब उनके सामने मिर्जा साहब ने बेटा पेश नहीं किया, बल्कि जिस बेटे को मुस्लिम मौद करार देते थे वो मर जाता था, तो बाद में जो आपने बेटा तलाश किया है, तो ये तो आपकी बहादुरी है, मिर्जा साहब की तो इसमें कोई बहादुरी नहीं ना। मुस्लिम मौद मिर्जा साहब ने कभी भी बशीरुद्दीन महमूद अहमद को करार नहीं दिया। पहला बेटा जिसको मुस्लिम मौद करार दिया वो फौत हो गया, उसके बाद ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद पैदा हुए, इनको मुस्लिम मौद नहीं करार दिया। फिर बशीर अहमद एम ए पैदा हुए, इनको मुस्लिम मौद नहीं करार दिया। फिर शरीफ अहमद पैदा हुए, इनको मुस्लिम मौद नहीं करार दिया। फिर मुबारक अहमद पैदा हुए, उसको मिर्जा साहब ने मुस्लिम मौद करार दिया, वो भी फौत हो गया। अब बताएं कि पीछे आपने खुद बाद में एक बेटा तलाश किया मिर्जा साहब के फौत होने के बाद, कितने साल बाद? 36 साल बाद।
मिर्जा साहब के उस बेटे ने खुद दावा किया कि मैं वो मुस्लिम मौद हूं। हकीकत यह है कि मिर्जा साहब को इस बेटे को पेश करना था हिंदुओं के सामने अपनी सच्चाई के दलील के तौर पर। क्या मिर्जा साहब ने पेश किया ये बेटा? क्या मिर्जा साहब ने बशीरुद्दीन महमूद अहमद को पेश करके मुंशी इंदरमन मुरादाबादी को, पंडित लेखराम वगैरह को कभी ये कहा कि ये है वो लड़का जो मुझे खुदा ने निशान दिया है? अगर उनके सामने नहीं पेश कर सके तो ये तो आपने खुद तलाश किया है। आपकी किताब है सीरत अम्मा जान, उसको खोल कर देखिए। और राजा साहब कहते हैं कि असल बात यह है कि मिर्जा साहब ने अनमवाइल बशीर को मुस्लिम मौद करार दिया, वो फोत हो गया। मुबारक अहमद को मुस्लिम मौद करार दिया, वो फोत हो गया। फिर मिर्जा साहब का ख्याल था कि तीसरी बीवी आएगी मेरे निकाह में, उसमें से वो लड़का पैदा होगा। तीसरी बीवी ना आई, तीसरी बीवी से निकाह ही ना हो सका। वो कहते हैं अब हमारे पास रास्ता ही क्या बचा है कि जो बच्चे मिर्जा साहब के बच गए हैं जिंदा, उनमें से हम किसी को तलाश करें। और वो तलाश किया है उन्होंने, आप लोगों ने उसको तलाश किया है, आप लोगों ने उसको मुस्लिम मौद बनाया है घड़ के। मिर्जा साहब ने इसको मुस्लिम मौद नहीं करार दिया, और ना ही मिर्जा साहब ने इस बेटे को हिंदुओं के सामने अपने निशान के तौर पर, मुस्लिम मौद के तौर पर, पिसरे मौद के तौर पर कभी पेश किया। अगर पेश किया है तो आप सबूत दे दें, मैं आपको मान जाऊंगा। और ये शिगरी साहब ने सवाल किया है कि वो मुस्लिम मौद की पेशगोई के लिए जो होशियारपुर गए थे, वहां चिल्ला काटा, तो वो लोग फिर साथ रहे कि नहीं रहे? कहता नहीं, वो तो साथ रहे। यानी वही बात है ना कि मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी, आपको इतराफ के बगैर कोई चारा नहीं था। कि आपने कहा कि वो लोग जो चिल्ले में साथ थे वो फिर साथ ही रहे, वो उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मिर्जा साहब आपने तो कहा था, हजूर आपने कहा था कि अब बेटा पैदा होगा, वो मुस्लिम हो गई तो बेटी पैदा हो गई है, इससे हम जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। फिर वो कौन को नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा, जब फिर लड़का हुआ वो मर गया, अच्छा अब तो हम जा रहे हैं, नहीं 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 रुको 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 रुको। ये किसी ने नहीं कहा कि चूंकि आपकी पेशगोई पूरी नहीं हो रही इसलिए हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि हजूर को तो यकीन था ही कि अल्लाह ताला मुझसे कलाम कर रहा है और अल्लाह ताला मुझे पेशगोई दे रहा है और अल्लाह ताला इस पेशगोई को पूरा भी करेगा। लेकिन वो लोग जो साथ थे वो पूरे यकीन के साथ इस बात पर कायम थे कि इस शख्स ने जो बात की है वो बिल्कुल पूरी होगी, और जमीन आसमान टल जाए लेकिन खुदा की बात नहीं टल सकती कभी। हाँ जी अंसर रजा साहब, जो बंदे इनके साथ थे वो, उनको तो मिर्जा साहब मुतमिन कर लेते थे अपनी चर्ब जुबानी से, उनको तो मुतमिन कर लेते थे। लेकिन जो बंदे दूर थे उनकी अगर आपने मिसाल देखनी हो या उनकी कैफियत जाननी हो तो नवाब मोहम्मद खान ऑफ मालेर कोटला का, जो बाद में इनका दामाद बना है, मुबारका बेगम का शोहर, उसका खत पढ़ लें। जब अब्दुल्ला आतम की पेशगोई झूठी निकली है तो क्या कहा नवाब मोहम्मद खान ने? उसने कहा कि पहले आपको बच्चे की दफा भी गलती लग गई, हमने कह दिया इज्तिहादी गलती हो गई है, लेकिन अब इसकी तो कोई तावील भी नहीं हो सकती। अब्दुल्ला आतम वाले मामले की तो कोई तावील भी नहीं हो सकती। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएं? पता है मिर्जा साहब ने क्या कहा कि तुम दूर हो इसलिए तुम समझते नहीं। ये देखो जितने मुरीद मेरे करीब हैं इन सबको समझ आ गई है कि पेशगोई सच्ची निकली है। अब्दुल्ला आतम 15 महीने का वादा था मरेगा, वो नहीं मरा, वो ढोल बाजे बजा रहे हैं। मैंने अपने मरीदों को मुतमिन किया हुआ है कि मेरी पेशगोई सच्ची है। तुम दूर हो, तुम इसलिए मुतमिन नहीं हो, तुम इसलिए बिस्मिल की तरह तड़प रहे हो। तो मिर्जा साहब के पास जो मुरीद थे उनको मिर्जा साहब मुतमिन कर लेते थे, ये बात ठीक है। ये उनमें सलाहियत थी कि अपने मुरीदों को वो अपनी चर्ब जुबानी से कन्विंस करके रखते थे। कुछ लोगों की मजबूरियां जरूरतें भी होंगी, जो बेचारे उनकी सिर्फ सहन में आके बैठे होते थे, 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाती थी, वहां से इन्होंने लंगर वगैरह का बंदोबस्त किया होता था। कुछ उनकी जरूरतें भी होंगी कुछ लोगों की, लेकिन कुछ को इन्होंने अपनी चर्ब जुबानी से भी मुतमिन किया हुआ था, ये ठीक है। लेकिन जो दूर थे वो तो चीख चीख के कह रहे थे, रो रो के कह रहे थे कि अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएं, पेशगोई तो साफ झूठी निकली है। पता है ना, नवाब मोहम्मद खान ऑफ मालेर कोटला का वो खत पढ़े जो अब्दुल्ला आतम की पेशगोई के झूठा साबित होने पर उन्होंने लिखा था, या रुस्तम खान का खत पढ़ लें, वो भी मिर्जा साहब का मुरीद था। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिर्जा साहब की पेशगोई को झूठा होते हुए देखकर उनसे किनारा किया है। हाँ, जो मिर्जा साहब के करीब थे उन्होंने मिर्जा साहब को यानी उनकी बातों पर एतराज नहीं किया, अगर किया है तो मिर्जा साहब ने उनको खामोश करवा दिया है, ये बात ठीक है। लेकिन असल चीज ये है कि मिर्जा साहब को ये पेशगोई अगर खुदा ने दी थी तो इतना खुदा ने रुस्वा क्यों किया कि वो निशान जो हिंदुओं को दिखाना था अपनी सच्चाई का, वो पेश नहीं कर सके उनके सामने मुस्लिम मौद का। ये जो बात एक और की उन्होंने कि जी वो तीसरा एतराज ये भी था मोहम्मद हुसैन बटालवी के खिलाफ जो था कि आपकी जबान सख्त है, आप सख्त कलामी करते हैं। बात ये है
बात यह है कि जो सख्त सलामी का इल्ज़ाम लगाता है ना, उसको ना कुरान का पता है ना हदीस का पता है। अव्वल तो खुद मौलवी साहब की अपनी ज़बान बड़ी सख्त थी, उसके अलावा उलमा की जो सख्त कलामी की मिसालें जो मैंने जमा की हुई हैं अल्लाह के फजल से, वो उसको आप सुन लें अगर, तो आपको समझ आ जाए कि सख्त कलामी कहते किसे हैं। इतनी बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की है, और ये एक दूसरे के मौलवियों की बातें इस तरह शाया करते हैं। मेरे पास एक अहले हदीस की किताब है, उसमें उसने देवबंदियों की मौलवियों की इतनी गंदी ज़बान नकल किया वहाँ पे कि कोई शरीफ आदमी उसको पढ़ भी नहीं सकता। और फिर कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, किसी को हरामजादा कहा है, उनके उलमा को गधा कहा है, एक को कहा है कि वो कुत्ते की तरह ज़बान निकाल कर हाँफता रहता है, एक जगह पे कहा है कि ये लोग जो है वो जानवरों से भी बदतर हैं। भाई अंसर रज़ा साहब, वो खालिक का कलाम है, कुरान खालिक का कलाम है, और अल्लाह ताला खालिक है, मालिकुल मुल्क है। आपके मिर्ज़ा साहब आपके खालिक हैं? वो आपके मिर्ज़ा साहब मखलूक हैं और किसी शरीयत के ताबे खुद को बताते हैं। वो शरीयत ये ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती, बल्कि वो तो कहती है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनकी ये अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, जिनको ये अल्लाह के अलावा मानते हैं, उनको गाली ना दो। मसीह अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन खुदा भी मानते हैं, खुदा का बेटा भी मानते हैं, और मिर्ज़ा साहब ने उनके बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि मकर और फरेब के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं था, उनको झूठ बोलने की आदत थी, उनको शराब पीने की आदत थी। ये सारी बातें जो आपके मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई हैं, ये क्या है? ये गालियां हैं जिनसे ममानियत, जिनकी ममानियत कुरान में आई और कहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि गालियां ना दो इनको। आपके मिर्ज़ा साहब ने गालियां दी हुई हैं कि परमेश्वर, हिंदुओं का परमेश्वर जो जिसको वो खुदा मानते हैं, गॉड मानते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये नाव से 10 उंगल नीचे है, और ये भी कहा है कि अक्लमंद इशारे को समझ जाए, मेरे को अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो जो गालियां इन्होंने दी हैं दूसरों के काबरीन को किसी शरीयत के ताबे खुद को बताते हुए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बाकी अगर आप इनको खालिक मानते हैं और इनके अल्फाज को, इनके कलाम को कुरान के बराबर मानते हैं, तो फिर अलग बात है। फिर आप कहें कि हम तो इनको भी अपना खालिक ही मानते, इलाही मानते हैं। उन्होंने खुदा का बेटा होने का तो दावा किया ही हुआ है, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा है अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलदी, तू मुझसे ऐसे जैसे खुदा का बेटा होता है, बेटे के दर्जे पर है। तो वो तो आपको कोई मसला नहीं है, उनको खुदा बना लें, खुदा का बेटा बना लें। वैसे भी उन्होंने खुदा भी बनने का तकरीबन ऐलान कर ही दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जो मेकाइल बताया गया है, रखा गया है, मेकाइल का एक मानी है खुदा जैसा, खुदा नुमा। मेकाइल का मतलब खुदा नुमा है, खुदा जैसा, तो वो खुदा जैसे ही हैं आपकी नज़र में, मेरा ख्याल है। तो इसलिए आप उनके कलाम को कुरान के ऊपर रखकर उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये जो एक और बात जिसको वो तुर्क का पता समझने वाली बात कर रहे थे अपनी उसमें पॉडकास्ट में, और वो सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में जैसे कोई बड़ा सनसनीखेज इंकिशाफ हो गया, ये क्या बात है? असल में बात यह है कि वो ज़माना ऐसा था कि जिसमें कोई तारीख़ पैदाइश का इंदराज तो होता नहीं था कि जी बच्चा पैदा हुआ तो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले गए और आपने वहाँ पे जाके तो बच्चे का इंदराज करवा दिया, उसकी पैदाइश की पर्ची ले ली। किसी को कुछ पता नहीं था, बल्कि आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले किसी को नहीं पता होता था कि हमारी असल तारीख़ पैदाइश क्या है। इसलिए ज़ूर ने जो लिखा वो अंदाजे से लिखा कि मेरी शायद ये है, लेकिन बाद में जो, क्योंकि एक बात को पकड़ कर बैठ जाए तो फिर तो बात हल नहीं होती। लेकिन उसकी निटी-ग्रिटी में जाने की बजाय मकसद क्या है इनका ये बताने का। मकसद ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ कि तेरी उम्र इतनी होगी, 2-4 साल कम, 2-4 साल ज़्यादा। वो नहीं हुई इनके बकौल, वो नहीं हुई। अगर वो नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर अपने दावे में सच्चे नहीं हैं। भाई अंसर रज़ा साहब, मिर्ज़ा साहब की उम्र उनके अपने बताए हुए हिसाब किताब के मुताबिक भी कभी भी 74 के अंदर दाखिल नहीं होती। उन्होंने मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार बताए हैं अपने बारे में, लेकिन यही कहा है ना कि कम अज़ कम 74 ज़रूर होगी मेरी उम्र, और ज़्यादा से ज़्यादा 86 होगी। तो वो कम अज़ कम 74 जो है उसको वो टच नहीं कर सके। आपकी बताई हुई जो तारीख़ पैदाइश है मिर्ज़ा साहब की 1835, जिसको मिर्ज़ा साहब ने कभी भी नहीं बताया कि मेरी पैदाइश का साल 35 है, कभी भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने अपनी पैदाइश का साल 1839-40 बताया। लेकिन अगर आपकी पैदाइश जो आपने बताई है वो भी ली जाए तो भी कभी मिर्ज़ा साहब 73 से ऊपर नहीं जाते। 1835 से 26 मई 1908 तक गिन लें, 73 साल बनते हैं।
74 साल फिर भी नहीं बनते, फिर आप कोई और पंचर लगाएंगे, कहेंगे कि नहीं वो कमरी महीनों से हम पूरा करते हैं। आपने रबड़ की तरह उसको खींच के पूरा ही करने की कोशिश करनी है ना। हकीकत तो यह है कि वो बात गलत निकली है। तो मिर्जा साहब ने कभी भी जो लोगों की जो डेटें दी हैं, अब्दुल्ला आतम के 15 महीने की खबर दी है, लेखराम का वो 6 साल की उसके बारे में पेशगोई की है, इसी तरह से सुल्तान बेग और उसके वालिद के बारे में कभी उनको कमरी महीनों से काउंट किया है कि कमरी महीनों के मुताबिक ये 2.5 साल में मरेगा मोहम्मदी बेगम का शोहर, 3 साल में मरेगा इसका बाप, 15 महीनों में मरेगा अब्दुल्ला आतम, 6 साल में मरेगा लेखराम। कभी कमरी महीनों से काउंट किया मिर्जा साहब ने? तो ये उम्र के बारे में जो उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र कम से कम 74 और ज्यादा से ज्यादा 86 होगी, इसके लिए आप कमरी महीनों की पनाह क्यों लेते हैं? उसके लिए आप कमरी महीनों का सहारा क्यों लेते हैं? आपको भी पता है कि मिर्जा साहब की दीगर सारी पेशगोइयों के साथ साथ ये भी पेशगोई झूठी निकली है, ये भी इल्हाम उनका झूठा निकला है। आप कहते हैं कि हकीकत वही भरी पड़ी है, उनकी पेशगोइयां सच्ची। कौन सी सच्ची हैं? आए हमारे साथ किसी पेशगोई पर बात कर लें, सब की सब पेशगोइयां मिर्जा साहब की झूठी निकली, एक भी सच्ची नहीं निकली है। हालांकि नजूमियों की और जोगियों की भी एक आध सच्ची निकल आती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो नजूमी हैं टीवी पे बैठ के कर रहे होते हैं, इनकी भी कोई ना कोई सच्ची निकल आती है। आपके मिर्जा साहब की तो सबकी सभी झूठी निकली है। ना मोहम्मदी बेगम वाली सच्ची निकली, ना उसके शोहर वाली सच्ची निकली, ना अब्दुल्ला आतम वाली सच्ची निकली, ना मुस्लिम मऊद वाली सच्ची निकली, ना 5वें बेटे वाली सच्ची निकली, ना वो जो पोता वो जो होना बशीरुद्दीन महमूद अहमद के घर में बेटा हुआ था मिर्जा नसीर, ना वो वाली सच्ची निकली, ना अपने 5वें लड़के वाली सच्ची निकली, ना जलजले वाली सच्ची निकली, ना वो जो मियां मंजूर के घर में लड़का होना था जलजले के साथ जिसको जोड़ा हुआ था 9 नामों वाला, ना वो सच्ची निकली। सारी की सारी झूठी निकली। 1902 में मुद में मौलाना सनाउल अमृतसरी ने कहा था कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी निकली। आज हम भी यही कह रहे हैं, सारी पेशगोइयां झूठी निकली। आए उनकी पेशगोइयों पर बात कर लें। अगर उनकी पेशगोइयां आप सच्ची साबित कर दें तो कोई बंदा उन पर गौर करेगा कि हाँ इतनी ज्यादा सच्ची खबरें एक बंदे की निकली हैं, तो उसका कोई ताल्लुक बिल्ला हो सकता है, इसका कोई खुदा से राब्ता हो सकता है। अगर सब की सभी झूठी निकली हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती कि आप किस बुनियाद पर उनको लेकर उनको पकड़ कर चल रहे हैं। कल क़यामत के दिन आपके हाथ में कोई दलील नहीं होगी। अगर वो सच्चे नहीं है तो फिर उनको वो जो कुरान ने झूठे की सजा लिखी है वो क्यों नहीं मिली? जगह जगह अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह ने एक रसूल की ज़बान से कहा, अल्लाह ने एक आम शख्स की ज़बान से कहा, बार बार इस बात को बयान किया कुरान के अंदर कि अगर मैं खुदा पर झूठ बोल रहा हूँ तो फिर खुदा मुझे तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, मेरा मिशन कामयाब नहीं होगा। और इसको हुजूर ने भी बार बार बयान किया। लेकिन वो जिसने हक तलाश नहीं करना है, उसने गांधी बोलना है, तो वो तो किसी एक को उठाकर देख लेगा। मुझे वो अशरफ अली थानवी साहब की बात याद आती है कि वो उनके ज़माने में लिखा है कि कोई बंदा उनके पास आया और उसने कहा जी कि मुझे आपकी फलां बात पर इतराज़ है। तो उन्होंने कहा कि इसी एक बात पर इतराज़ है, कोई और भी इतराज़ात हैं? कहता नहीं जी इतराज़ात तो और भी हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये इसको भी वहीं जाकर रख दो जहाँ पे दूसरे पड़े हैं, क्योंकि असल मसला हक तलाश करना नहीं है। मैं इसका जवाब दूंगा तो तुम एक और ले आओगे, मैं उसका जवाब दूंगा तुम एक और ले आओगे, इसलिए इसको भी वहीं जाके रख दो जहां भी दूसरे इतराजात तुमने रखे हुए। असल मसला ये है कि आपको अव्वल तो कुरान से आपको पता नहीं है कि कुरान का म्यार क्या है कि जो झूठा होगा वो हलाक होगा। अगर आपके कौल वो नौजुबिल्लाह सत्य नहीं है तो फिर तो हलाक होना चाहिए था उनको, वो नहीं हुए। जहां तक हलाक होने की बात है अंसर रजा साहब, जो भी नबी कत्ल किया जाए वो झूठा तो नहीं होता, और ना झूठा होने के लिए ये दलील है कि जो कत्ल हो जाए वो झूठा होता है, जो बच जाए वो सच्चा होता है। ऐसा तो नहीं है ना, आपको भी पता है कुरान ने कहा है फतक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, कई नबियों को नाहक कत्ल कर दिया गया। तो जो भी कत्ल हो जाए वो झूठा नहीं होता, और जो बच जाए वो सच्चा नहीं होता। हलाक होने का मानी आपके नजदीक भी यही है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। तो अब मिर्जा साहब की कामयाबी आप देख लें। ये मिर्जा साहब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और चंद सालों में ये धंधा भी खत्म हो जाएगा। हाँ, जब तक इनका चल रहा है, जब तक ये दुकान चल रही है, आप यही कहते रहेंगे कि ये हलाक नहीं हुए, क्योंकि इनका खत्म नहीं हुआ, इनका बनाया हुआ ये धंधा जो है वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। बहुत जल्द ये कादियानियत इस दुनिया से मिटने वाली है, नाबूद होने वाली है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर खासे को आपने हाथ डाला है और लोगों ने आपको बावर करवा दिया है बार बार सोशल मीडिया पर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत का सवाल है, इस्मत का सवाल है, उनके खासों को हाथ डाला जा रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नबियों से मिसाक लिया गया। आप कहते नहीं मिर्जा साहब के लिए लिया गया। नबी पाक के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि मेरे बाद वो आएंगे, आप कहते नहीं मिर्जा साहब के लिए की थी। ये आप लोगों को बार बार लोग बता रहे हैं। आप नहीं छोड़ेंगे इसको तो इंशाल्लाह अल्लाह इसको नाबूद कर देगा। जब तक ये दुकान चलती है तब तक आप कहते रहें कि हलाक नहीं हुए। तो वो कहते हैं कि जी बड़ा आप
شور کرتے ہیں یا بہت لوگوں نے یہ بات بنائی بھی ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک بہت بڑے مناظر تھے اور انہوں نے مناظرے کیے اور اسلام کا دفاع کیا، اور وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں کیے، یہ کوئی 4-5 مناظرے کیے، اس سے زیادہ تو نہیں کیے، جیسے مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو بھی ایسی بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں، یہ تو معمولی سی بات تھی۔ کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ اپنے بندوں کو بھی اعتراض کر دیے نا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا کہ وہ تو مناظرے کر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی 5 مناظرے تھے، ایک آریہ سماج سے، ایک عیسائی سے، تو باقی 3 تو مسلمانوں سے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو مسلمانوں سے مناظرے کر کے وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا کیسے بن گئے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یعنی ایک مناظرہ تو عیسائی سے کیا، ایک مناظرہ آریہ سماج سے کیا، 3 مناظرے مسلمانوں سے کیے، تو مطلب مسلمانوں سے مناظرے کر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ بھائی اسی بات کو تو میں جھٹلا رہا ہوں نا انصر رضا صاحب، اسی بات کا تو میں انکار کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بات وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ آنکھوں کا تارا وہ بنے ہی نہیں کبھی کسی کا، وہ غیر مسلموں کو اسلام پر اور اہل اسلام پر ہنسانے والا بندہ تھا۔ یہ بھی الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنے کسی تعصب اور بغض کی بنا پر کہے، یہ اسی زمانے کی وہ گواہی ہے جو ڈاکٹر اسرار پر اور ان کی بات پر اور ان کی تحقیق پر 1000 گنا بھاری ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر اسرار تو بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ وہ بندہ جو چٹان کی طرح آپ کے اس مدعی نبوت کے سامنے کھڑا رہا، جس کا نام محمد حسین بٹالوی ہے، جس کو آپ کے مرزا صاحب کہتے تھے نا، اول المکفرین یہ بندہ ہے، سب سے پہلے اس نے میری تکفیر کی ہے۔ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ جنڈیالے کے ان مسلمانوں کو جب شیخ بٹالوی نے خط لکھا کہ اس کو عبداللہ آتم کے سامنے کھڑا نہ کرو، اس شخص نے آج تک اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ اس نے غیر مسلموں کو صرف مسلمانوں پر ہنسایا ہے۔ یہ عبداللہ آتم کے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کر پائے گا اور خود تو شرمندہ نہیں ہوگا، تمہیں رسوا کروائے گا۔ بالکل صحیح بات ثابت ہوئی شیخ بٹالوی کی۔ تو ہمیں تو محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی گواہی زیادہ معتبر لگتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار اور میں، ہم تو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو اس زمانے کے لوگ سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اس نے کوئی کبھی کسی غیر مسلم پر فتح نہیں پائی۔ ڈاکٹر وہ کیا نام تھا، ماسٹر مرلی دھر سے جو بات شروع کی وہ بھی بیچ میں چھوڑ دی، اس کو بھی پورا نہیں کیا، اس کو بخارات نکالنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی طرح سے عبداللہ آتم کے ساتھ جو گفتگو کی، اس میں بھی کوئی اسلام کی طرف سے تو خیر وہ نمائندے تھے ہی نہیں، وہ تو اپنی ذات کو لے کر گئے تھے کہ میں اپنی ذات کو وہاں منواؤں گا، تو وہاں سے جھوٹے ثابت ہو کر آئے۔ سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے بھی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے قادیانیت۔ جی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص براہین انبیاء کا مطالعہ کرے گا وہ مصنف کی بسیار نویسی، بسیار کہتے ہیں کثرت کو، بسیار نویسی یعنی کہ اس نے کثرت سے لکھا ہے، دراز نفسی اور صبر و جفا کشی سے ضرور متاثر ہوگا۔ دراز نفسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، وہ اتنا ان کا دراز نفس ہے کہ وہ اس کو پرواہ نہیں کسی کی۔ اور صبر اور جفا کشی، صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے موقع پہ قائم ہوں، تو مجھے ہلا نہیں سکتے یہاں سے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی کسی کا کو اللہ رحم کرے فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو صبر کرو صبر کرو، وہ صبر کا ایک الگ ہی مفہوم ہے جو عوامی یا بازاری تو نہیں کہانی چاہیے، لیکن وہ ایک رائج ہے عوام کے اندر، وہ غلط بات ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ مخالفت میں بھی اپنے موقع پہ قائم رہیں اگر آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ جفا کشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جفائیں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ اس کو جھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی وہ مصنف کی بسیار نویسی، دراز نفسی اور صبر و جفا کشی سے ضرور متاثر ہوگا۔ یہ تمام صفات ایسی ہیں جو مصنف کو عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب مناظر اور ایک بڑا مصنف ثابت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب مناظر، تو وہ کہا بھی کیا ہے، عیسائیوں اور آریہ سماجیوں سے، تو ایک عیسائی سے مناظرہ، ایک آریہ سماج سے مناظرہ، یہ کامیاب مناظر ہو گئے۔ بھائی ندوی صاحب نے جن باتوں کو لے کر ان کا مناظر ہونا قرار دیا ہے نا، کامیاب مناظر، وہی سوال جواب ہیں جو مرزا صاحب نے فتح مسیح جیسے عیسائیوں کے سوال کہیں سے پکڑے اور اس کو کتاب میں چھاپ دیا اور کہا اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو وہ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، آپ روحانی خزائن کی نامی جلد کھولیں، اس کا صفحہ نمبر 444 کھولیں، نور القرآن حصہ دوم، اس میں فتح مسیح کا 5واں سوال پڑھیں۔ جو اس نے سوال کیا ہے اس کا کیا جواب دیا مرزا صاحب نے، تقریباً 5-6 صفحے کا جواب دیا ہے، اس میں 2 صفحے وہ صحیح مسلم کی حدیث کی باطل طویل کی ہے اور 3 صفحے مسیح علیہ السلام کو گالیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ تھے وہ مناظر آپ کے
जिनको नदवी साहब ने कहा कि कामयाब मुनाजर, मतलब इस तरह का मुनाजर तो कामयाब मुनाजर ही होता है जो मुखालिफ को गालियां दे, इल्जामी जवाबात दे और गंदी गंदी तोहमतें उन पर लगाए। ये कामयाब मुनाजर होता है। मुनाजरे उन्होंने वही किए जो उनके बेटे ने लिखे। अगर उनके अलावा आपके पास उनके मुनाजरों की कोई फहरिस्त है तो वो मुनाजरे पेश करें, वरना किसी के सवाल का जवाब दे देना मुनाजरा ना रंग में, वो मुनाजरा थोड़ी होता है। मुनाजरे उन्होंने जिंदगी में 5 ही किए, ये बात दुरुस्त है। और शायद भी किसने की है? वो हमने शायद की है। अब्दुल्ला आसम वाला मुनाजरा हमने शायद किया जंग मुकद्दस के नाम से, जमात अहमदिया ने। मास्टर मोदी दर्द के साथ जो मुनाजरा हुआ वो हमने शायद किया, उन्होंने नहीं किया। मुसलमानों के साथ जो मुनाजरे हुए वो अल हक मुबाहिसा लुधियाना, अल हक मुबाहिसा दिल्ली और एक और मुनाजरा है, वो हमने शायद किए ना, उन्होंने तो नहीं किए। उन्होंने इसलिए नहीं किए कि उनको पता था कि हम तो हार के जा रहे हैं, तो अगर वो हार के जा रहे हैं तो फिर वो कैसे शायद करेंगे उसको। अच्छा, अगर ये मयार है कि जो मुनाजरा छप गया है वो कामयाबी वाला मुनाजरा है, जो नहीं छपा, जिसने नहीं छापा वो नाकाम हुआ है, तो मौलाना अब्दुल हकीम कुलानूरी के साथ जो मुनाजरा हुआ लाहौर में, वो कहाँ छपा हुआ है आपकी किताबों में? दिखाएंगे। मीर कासिम अली जो 300 रुपया हार कर आए थे लुधियाना में, अबुल्फा मौलाना सनाउल अमृतसरी के लिए इनाम रखा था उन्होंने कि अगर आप अपना ये दावा साबित कर दें कि मिर्जा साहब ने 15 अप्रैल 1907 को आखिरी फैसला इश्तिहार खुदाई ताईद पर शाया किया और खुदा से उनको इल्हाम हो गया कि ये आपकी दुआ कबूल हो गई है, ये दावा साबित कर दें तो आपको 300 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो मौलाना सनाउल अमृतसरी ने वो दावा साबित किया और वहां से 300 रुपया जीता। वो कहाँ छपा हुआ है? उसके लिए तो मौलाना सनाउल अमृतसरी ने खत लिख के भी पूछा था कि भाई वो जो मुंशी कासिम साहब यहाँ 300 रुपया हार के गए हैं, उस मुनाजरे की रोइदाद क्यों नहीं लिखते आप अपने अल-फजल अखबार में? वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हम तो, वो उन्होंने अपनी जाती हैसियत में किया है, हम तो ऐसे किसी वाक्य को जानते ही नहीं है। ये इस तरह का जवाब दिया था उन्होंने अल-फजल वालों ने। तो जो ना छपे वो हारने की दलील है और जो छपा हुआ है वो फतह की दलील है। सुभान अल्लाह। आए हैं और उन्होंने कहा जी कि हमारे मौलवी तो ईसाई से मुकाबला नहीं करते, ईसाई ललकार रहे हैं, मुकाबले का चैलेंज दे रहे हैं, हमारा को मौलवी मानता नहीं है, तो आप आ जाए। हजूर बड़े खुश हुए, चुनांचे हजूर ने उस मुनाजरे की हामी भर ली। जब इनको पता चला ईसाइयों को, पादरी मार्टिन क्लार्क को, तो वो घबरा के उसे हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा जी ये तुम किसको मुनाजरा कबूल कर लिया है? वो तो बड़ा सख्त आदमी है इस लिहाज से कि उसके पास दलाइल बहुत है। तो उसने कहा कि वो तो मुसलमान ही नहीं है, हमने तो कहा था मुसलमानों से हमने मुनाजरा करना है। जनरल शेर खान के मुसलमानों ने कहा हम मिर्जा साहब को मुसलमान ही समझते हैं, तो तुम आओ मुनाजरे में। और उधर मोहम्मद मटालवी को भी हाथ पांव की पड़ गई और इसकी तरह तरह की बातें बनाई अमन जी ने भी यहाँ पे। लेकिन असल सवाल जो पूछने वाला है वो ये है कि जब ईसाई ललकार रहे थे तो फिर मौलवी क्यों नहीं आया मुनाजरे में? जंडियाला शेर खां के जो मुसलमान थे वो क्यों मजबूर होकर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पास आए और क्यों उनको कहा कि जी बाकी कोई नहीं मान रहा, आप मान जाए? और अगर हजूर मान गए हैं और उसके बाद उनको होश आया है मुसलमानों को, मौलवियों को, तो फिर वो आ जाते, वो कहते नहीं हम कर लेंगे मुनाजरा, तुम इनको छोड़ दो। पादरी मार्टिन क्लार्क को जाके कहते, मुसलमानों को जाके कहते कि अच्छा चलो हमसे गलती हो गई, हम पहले नहीं आए, अब तुम मिर्जा साहब को निकाल दो, उनसे कहो जी सॉरी हमारा मौलवी मान गए, हमारे मौलवी मान गए, उलमा मान गए हैं, हम मुकाबला कर लेंगे। क्यों नहीं आए? फिर करते ना फिर मुनाजरा। अंसर रजा साहब, मौलाना बटालवी ने उनको जंडियाले के मुसलमानों को खत लिख के कहा था, अगर कहेंगे तो मैं वो स्कैन लगा दूंगा रसाला शाह तो सुन्ना का आपके सामने। शेख बटालवी ने उनको खत लिख के कहा था, ओ मेरे भोले भाले मुसलमान भाइयों, वो सोचो तो सही इस शख्स ने आज तक इस्लाम की क्या खिदमत की है, इसको क्यों ईसाइयों के सामने पेश करना चाहते हो? मुस्लिम उलमा मौजूद हैं ईसाइयों से मुकाबला करने के लिए। आपका ये सवाल कि वो क्यों मिर्जा साहब को आगे पेश करना चाहते थे, उसकी वजह यही है कि मुनाजराना गुफ्तगू में जितना बंदा बदकलाम हो, बदजुबान हो, जितना चरब जुबान हो, जितना वो तुंद और तेज जुबान से मुखालिफ को ललकारे, वो लोग पसंद करते हैं उसको। भाई इतनी बात थी। ये गालियां देते थे मसीह अलैहिस्सलाम को, गालियां देते हुए इनको कोई परहेज नहीं थी, जिस तरह के अंजाम आतम वगैरह में इन्होंने दी हुई हैं, तो इसलिए वो इनको आगे कर रहे थे। हालांकि उलमाए इस्लाम ने उनको मना किया कि भाई ये शख्स इस काबिल नहीं है और ये आपको रुसवा करवाएगा। ये नहीं है कि शेख बटालवी ने कहा कि अगर सवाल ये करो कि कौन सा आलम दीन उन ईसाइयों से मुनाजरा करे, अब्दुल्ला आतम से या मार्टिन क्लार्क से, तो हमारे कई उलमा हैं, आप किसी से उनकी बात करवा दें, अगर किसी से नहीं करना चाहते मुझसे करवा दें। शेख बटालवी ने कहा मेरे साथ बात करवा दें उनकी, मैं बात करने के लिए तैयार, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जंडियाले के मुसलमानों को ये धोखा लगा हुआ था कि मिर्जा साहब अव्वल तो गालम गलोच से उनको मात दे देंगे, अगर वहां ना भी दे सके कोई ना कोई उस्मानी निशान पेश करेंगे उनके सामने। वो उस्मानी निशान जो मिर्जा साहब ने पेश किया है 15 महीने की पेशगोई करके कि ये 15 महीने में मरेगा, और वो ना मरा, इसका जो नतीजा फिर उन्होंने भुगता है जंडियाले के मुसलमानों ने, वो आपकी आंखों के सामने है। खुद मिर्जा साहब का साला ईसाई हो गया। मिर्जा साहब ने जिसको शराइत तय करने के लिए भेजा था यूसुफ पठान, वो ईसाई हो गया। वो जंडियाले वाले सारे, वो मुंशी इस्माइल वगैरह सारे ईसाई हो गए। ये नतीजा निकला उसका।
اگر مرزا صاحب علیہ السلام نعوذ باللہ اس مناظرے میں ناکام ہو گئے ہیں تو ناکامی کس کی ہو رہی ہے؟ اسلام کی ناکامی ہو رہی ہے نا. کس کے مقابلے میں؟ عیسائیوں کے مقابلے میں. تو آپ اسلام کے چیمپئن ہیں, آپ اسلام کے پہلوان, تو آپ جا کے مقابلہ کر لیں. عبداللہ اعظم کی ان تمام باتوں کا جس کا جواب آپ کے بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں دے سکے, آپ دے دیں جا کے. آپ کو کسی نے روکا ہے؟ ہاتھ پکڑا آپ کو کسی نے کہ آپ جواب نہ دیں؟ کیونکہ اس میں پتہ اسلام کی ہوگی نا. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا غلام احمد نے جا کے تو اسلام کی لٹیا تو بو دی, نام بدنام کر دیا, اب ہم جا رہے ہیں. تو آپ ایک چیز سے دو شکار کرتے. ایک طرف تو آپ عیسائیوں کو شکست دیتے, عیسائیت کو جھوٹا ثابت کرتے, دوسری طرف آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو متعلق کہتے. دیکھو جی یہ جواب نہیں دے سکا, ہم نے جواب دے دی جا کے. ہاں شیخ بٹالوی نے جواب دیا ہوا ہے. عبداللہ اعظم نے جو سوال مرزا صاحب کے سامنے رکھے تھے الوہیت مسیح پر, ان کے جواب شیخ بٹالوی نے اپنے رسالہ شاۃ السنہ میں مناظرے کے بعد بھی دیے ہوئے ہیں. اگر شیخ بٹالوی کو جنڈیالے والے پیش کرتے تو وہ اسی وقت ان کے جواب دیتے, ان کے منہ پہ مارتے. لیکن آپ کا مطالعہ نہیں ہے, آپ نے صرف ایک سائٹ پڑھی ہوئی ہے, اپنے مرزا صاحب کی سائٹ پڑھی ہے. آپ نے ان کے مخالف علماء کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شیخ بٹالوی نے رسالہ شاۃ السنہ میں ان باتوں کے جواب دیے ہوئے ہیں. بلکہ الٹا جب عبداللہ اعظم اپنی میعاد کے اندر نہیں مرا تو آپ نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر جلوس نکالا ایک مسلمان کے خلاف. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے کہ مسلم علماء نے ان کے ساتھ مل کر جلوس نکالا. کون سا جلوس مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر نکالا؟ مسلمانوں کو تو ندامت اٹھانی پڑی آپ کے مرزا صاحب کی وجہ سے, کیونکہ کچھ جاہل عیسائی وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے, پیغمبر اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے آپ کے مرزا صاحب کی وجہ سے. حالانکہ شیخ بٹالوی نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بندہ, اس کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے باوجود جو ان میں جاہل طبقہ ہوتا ہے وہ اسلام پر زبان درازی انہوں نے کی, لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر کوئی جلوس نہیں نکالا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور انصر صاحب باتیں اور بھی ہیں دو تین, اور ایک خود نمائی کا الزام بھی ہے جو لگایا ہے, اس پہ بات مختصراً اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو. دیکھیں جی باتیں تو میں نے بہت کیا, اور وہ میں نے موٹی موٹی باتیں بیان کر دی ہیں جی. باتیں تو وہ قابل جواب ہی نہیں ہے. ان کا بودا پن اتنا صاف ظاہر و باہر ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. جو خود نمائی کا الزام انہوں نے لگایا ہے, تو مجھے ان کے انٹرویو سے دو باتوں کی بڑی خوشی ہوئی. احمد نذیر کے انٹرویو سے بہت خوشی ہوئی مجھے. ایک خوشی یہ ہوئی کہ انہوں نے قرآن اور سنت سے ایک بھی بات پیش نہیں کی, اور ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس ہمارے پلے قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی قرآن سنت حدیث ہمارے پلے نہیں ہے. ہوتا تو کم از کم ایک آیت پیش کرتے, ایک حدیث پیش کرتے. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اور دوسری مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ میں نے جو اب ایک مقالہ لکھا ہے برہان احمد کے نام سے, اس کا ایک جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پچھلے انبیاء کے مخالفین نے مکفرین نے باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ والی بات رہ گئی تھی مجھ سے, کیونکہ کبھی اس نے کی نہیں. کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے جو بھی کیا وہ خود نمائی کے تحت کیا. احمد نذیر وہ پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ مرزا صاحب نے خود نمائی کے تحت سارے کام کیے, یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں, اپنی خود نمائی کے لیے. پھر میں کہوں گا انصر رضا صاحب, کیونکہ آپ نے صرف مرزا صاحب کو پڑھا ہوا ہے, ہم نے آپ کے مرزا صاحب کو بھی پڑھا ہوا ہے اور اپنے علماء کو بھی پڑھا ہوا ہے, اس لیے ہمیں دونوں طرف کی خبر ہے. یہ بھی آپ کی لا علمی اور جہالت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں پہلی بار احمد نذیر کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو کچھ کیا خود نمائی کے لیے کیا. حالانکہ یہ الزام ہمارے علماء اسلام سال ہر سال سے ان پر لگاتے رہے ہیں, اور شیخ بٹالوی سے لے کر مولانا ثناء اللہ امرتسری تک سب کا یہی الزام ہے کہ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ اپنی ذات کو پیش کرنا چاہتا ہے. اصل میں جو پہلی پیشگوئی جو پیش کرنا چاہتے تھے اور شیخ بٹالوی منع کر رہے تھے, وہ کیوں منع کر رہے تھے کہ یہ اپنی خود نمائی سے بچو. اگر تم اسلام کے وکیل ہو تو اسلام کی بات کرو, تمہیں پیشگوئی دی گئی ہے, تمہارے گھر میں لڑکا ہوگا, اس کا کیا لینا دینا اسلام سے. تو یہ تو علماء اسلام شروع سے اس کی مذمت کرتے رہے ہیں کہ یہ بندہ خود نمائی کا شکار ہے اور اپنی ذات کو صرف منوانا چاہتا ہے لوگوں سے. یہ کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی, یہ آپ کی علمی جہالت ہے. اللہ آپ کو سمجھتے ہے.